Any doubts in the homework sums? Hello, sir. Yes. Sir, can you please show us illustration number 21? Illustration 21. Yes, sir. Page number 43. सर मुझे भी कुछ डाउट है, मतलब पूरा होल सम पे नहीं, कुछ एक दो जगह पे सर। एक मिनट, कौन सा सम है? क्वेश्चन नंबर 21. Illustration 21, sir. This is a bit complicated sum. Any particular doubt or you want the whole sum? Sir, I have full doubt. Whole sum? Yes, sir. Okay. You are also having the same sum doubt, Rakesh Sharma? No sir. Huh? Previous questions, illustrations number 13 and 14. Illustration number 30. 13, 1 3. 3. Okay. 1 3. ओके, इसमें क्या डाउट था? सर जो अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुआ है ना, तो वहाँ पे 775 शेयर्स पे रिसीव किया, तो वो 775 शेयर्स कहाँ से आया, तो वो नहीं समझ में आ रहा सर। अलॉटमेंट का? हाँ सर। Okay, और फर्स्ट कॉल भी वही, तो अलॉटमेंट अगर समझ आ जाएगा तो फर्स्ट कॉल का निकल जाएगा सर। Okay, okay, okay. Let me read the sum. 1 second. Priyanka's authorized capital of these 600 shares were issued at fully paid. 800 shares were subscribed for by the public, and during the first year 50 per share was called up payable. Into 2, what is this? 2 lakh rupees, 100 निकालना, 2000 shares है, 600 fully paid in return for machinery. Okay, 800 was subscribed by the public, and during the first year ये 800 का ब्रेकअप है. During the first year 50 per share was called up payable, 20 on application, 10 on allotment, 10 on the first call, 10 on the second call. The amounts received in respect of these shares were as follows: 600 shares fully called up amount, in the sense 50 rupees, 125 shares 40 per share, 50 shares 30 per share. Okay, on 25 shares 20 per share. एप्लीकेशन मनी कितना शेयर्स का रिसीव हुआ है राकेश शर्मा? सर 775 है बुक पे, तो वो नहीं समझ में आ रहा वो जगह पे। नहीं, एप्लीकेशन का बोल दो, अलॉटमेंट का मैं बोल देता हूँ कैसे आया था. सर एप्लीकेशन 800 शेयर पे रिसीव हुआ. हाँ करेक्ट, एप्लीकेशन 800 का आ गया. हाँ सर। ठीक है, अभी 25 जो शेयर्स है, लास्ट शेयर्स 25, उसमें सिर्फ 20 रुपीज आया था ना, मतलब एप्लीकेशन ही आया था. ओके, 20 रुपीज ही आया, मतलब क्या था, ओनली एप्लीकेशन आया था, इसमें अलॉटमेंट मनी आया नहीं है.
तो आउट ऑफ 800 ये 25 निकाल दो, 775 होगा। अंडरस्टूड? हाँ सर आगे। हाँ, 600 शेयर्स देखो, फुल अमाउंट कॉल्ड अप मिल गया। इसका मतलब है 20 एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट, 10 फर्स्ट कॉल, 10 सेकंड कॉल, सब मिल गया। 125 शेयर्स में 40 रुपीज मिल गया। 40 रुपीज इन द सेंस 20 एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट, 10 फर्स्ट कॉल। 50 शेयर्स में 30 रुपीज मिल गया, 20 एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट। 25 शेयर्स में सिर्फ 20 रुपीज मिल गया, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन मिल गया, मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला। तो जो बाकी बचा है 600 प्लस 125 प्लस 50, 775। क्लियर? हाँ सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 is clear. Now Shubha is asking question number 21. सर 14 में भी सर एक जगह डाउट है, जो री इशू के टाइम है ना सर, तो वहाँ पे मतलब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, यहाँ पे नहीं है सर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट। नंबर 14. हाँ सर, ओके, तो यहाँ पे दो जगह डाउट है सर। कौन सा पॉइंट? सर एक जो अलॉटमेंट मनी जो रिसीव नहीं हुआ है कॉल्स इन एरर के टाइम पे 450, वो अमाउंट कैसा है वो, और एक री इशू के टाइम पे सर। Okay, first let me read the question once. SOS Limited issued a prospectus inviting applicant for 6,000 shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees. Application 2, 3, 5, 5, 8 to 10 rupees. ठीक है. Applications were issued for 9,000 shares and allotment was made pro rata to the applicants of 7,500 shares. The remaining applicants were refused allotment. Okay. ओके, 7,500 के लिए 6,000 दिया. ओके, मनी ओवरपेड वर अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट. ओके, डी टू हुम 100 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay the allotment money. Okay, D to whom 100 shares were allotted failed to pay the allotment money. Okay, on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Okay, Z, the holder of 200 shares, failed to pay both the calls and his shares were forfeited after the second and final call. Okay, of the shares forfeited, 200 were sold to C. 100 ये 200. ओके, 300 से 200. ठीक है, अभी क्या डाउट था? सर कॉल्स इन एरर अलॉटमेंट वाला सर, जो रिसीव नहीं हुआ। कॉल्स इन अरियर्स. ओके, अलॉटमेंट वाला। कॉल्स इन अरियर्स जो पहला एंट्री है 450 रुपीज, उसमें हाँ डाउट है सर। क्या? हाँ सर। ओके, कॉल्स इन एरियर शेयर अलॉटमेंट. जेड जो है वो फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया, मतलब वो अलॉटमेंट पे कर दिया. ठीक है, जेड का प्रॉब्लम नहीं है. अभी डी ही पेमेंट नहीं किया था ना. अग्रीड? हाँ सर। हाँ, डी 100 शेयर्स अलॉट किया था. अभी उसका कॉल्स इन एरियर्स कितना है? अलॉटमेंट मनी कितना था? अलॉटमेंट मनी कितना था? 5 रुपीज. हाँ, तो आइडियली 100 इंटू 5 है. करेक्ट? हाँ सर। 100 इंटू 5 500. आइडियली 100 इंटू 5 500 होना चाहिए. लेकिन डी 100 शेयर्स डी को 100 शेयर्स अलॉट किया,
लेकिन डी ने कितना अप्लाई किया था? राकेश शर्मा, मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? 6000 शेयर्स इश्यू किया तो 7500 के लिए अलॉट किया है कि नहीं? एप्लीकेशन हाँ सर। 6000 को भेजा है, लेकिन 7500 लोग को 6000 अलॉट किया. दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यस और नो? हाँ. नाउ प्रोरेटा अलॉटमेंट 6000, मतलब 6000 शेयर जो जिसको अलॉट किया वो एक्चुअली अप्लाई किया 7500. यस और नो? नाउ 100 शेयर्स अगर अलॉट किया तो कितना अप्लाई किया होगा? अमाउंट नंबर बताओ. 6000, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6000 7500, 100 शेयर्स का कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ. 100 इंटू 7500 डिवाइडेड बाई 6000 कितना था? कैलकुलेट करो. 125। कितना? 125। 125. सर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? बिकॉज ही डी माइट हैव पेड एप्लीकेशन मनी फॉर 125 शेयर्स. यस और नो? हाँ. नाउ 125 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 2. सर 250 रुपीज है. यस और नो? लेकिन Yes, अलॉट sir. किया 100 शेयर्स, तो एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज होने से 200 होगा. यस और नो? यस सर। ये 50 रुपीज जो है वो क्या करते हैं जनरली कंपनी? मैंने अर्लियर क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बोला 50 रुपीज जनरली रिफंड नहीं करते हैं. यस और नो? व्हाट दे विल डू? सर वो सर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगा. करेक्ट. अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे. तो इस 50 रुपीज को अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करना है. समझ गया? हाँ सर। हाँ. तो अभी कॉल्स इन एरियर्स इनडायरेक्टली कितना बुक कर रहा है? कॉल्स इन एरियर्स ऊपर में देखो, टोटल जितना रिसीव हुआ है उतना का ही लिखा होगा. ऊपर में मैं एंट्री बता रहा हूं जनरली. तो इधर कॉल्स इन एरियर्स एक्चुअली 500 था, लेकिन 50 रुपीज ऑलरेडी मिल गया, तो कॉल्स इन एरियर्स नेट अमाउंट 450 ही होगा. समझ गया? हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। इस सब में और कोई पॉइंट है क्या? हाँ सर, वो री इशू के टाइम पे सर। रीइश्यू. हाँ सर। ओके. फॉरफिटेड शेयर्स 200 शेयर्स है, वो सोल्ड किया है सी को 8.5 पे. ठीक है. कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? होल 10 रुपीज. यस और नो? यस सर। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स इंटू 10 रुपीज 2000 रुपीज. सो फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा? फॉरफीचर बोल रहे हैं या री इश्यू बोल रहे हैं? री इशू के टाइम पे। री इश्यू के Forfeiture टाइम पे इश्यू है क्या? ओके. So 200 shares were sold to C. Okay, forfeited to. Reissue का एंट्री ही नहीं इसमें. शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स. ठीक है. फॉरफीचर. ओके. रीइश्यूड बीइंग डिस्काउंट ऑन 200 shares reissued. सर बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, पर यहाँ पे कितना री इशू किया वो तो शोल्ड कर दिया सर। Forfeited were sold to C
credited as fully paid up for 8.5 rupees per share, the whole of D shares being included. जनरली फॉरफीचर ये रीइश्यू का एंट्री क्या होता है? सर बैंक अकाउंट डेबिट होता है सर। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड डिस्काउंट अगर होने से फॉरफीचर होगा। हाँ सर। टू शेयर कैपिटल, यस और नो? यस सर। ये सी कौन है? सी डी जेड दिया था, ये सी कौन है? 8.5 पे दिया है। सर सी जिसको रीइश्यू करके सेल किया है वो है। हाँ, इधर एंट्री गलत दिया था, आप ये लिख दीजिए एंट्री, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स इंटू 8.5 ना? यस और नो? यस सर। हाँ, फॉरफीचर अकाउंट से कितना लेगा? 200 इंटू 1.5, ये 300 होगा। ये 8.5 कितना है बताओ? 1700। 1700 200 इंटू 10 रुपीज 2000 होगा शेयर कैपिटल में। ये एंट्री मिसिंग है, लिख दीजिए। ये 300 का ये एंट्री दिया बुक में। ठीक है? जी सर। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है वो मिल गया है? हाँ सर, वो कैलकुलेशंस करने से नहीं। सर यहाँ पे जो 200 शेयर्स को फॉरफिट किया था तो फिर री इशू भी तो 200 शेयर्स से किया ना, तो सर वहाँ पे हाँ 200 शेयर्स ही तो रीइश्यू किया है। सोल्ड बोला है, रीइश्यू नहीं बोला, सोल्ड बोला है, सेम चीज है। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 200 शेयर्स वर सोल्ड टू सी। मैं समझा नहीं राकेश शर्मा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? नहीं, मेरा क्वेश्चन से है जैसे लास्ट क्वेश्चंस पे जैसे 500 शेयर्स पे इतना रुपीस होता था और 300 शेयर्स री इशू करता था, तो वहां से हम लोग को अमाउंट निकालने में इजी होता था। पर यहाँ पे 200 शेयर्स फॉरफीचर का है और फिर वही री इशू के टाइम पे भी 200 नहीं 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 नहीं, फॉरफिट किया 200 नहीं 300 है। 300। हाँ, डी का भी फॉरफिट किया ना, वो लाइन पढ़ो। D to whom 100 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited. Z the holder of 200 shares failed to pay the both the calls and his shares were forfeited. Z का दो हाँ रॉन्ग दिया सर, यहाँ पे 200 को ही यहाँ पे फॉरफिट किया है सर बुक्स पे। 100 का भी है फॉरफीचर एंट्री, ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7th एंट्री। शेयर कैपिटल 800 जो था, सिक्योरिटीज प्रीमियम 200, 2 फॉरफीचर शेयर 250, दैट इज ऑल्सो ए फॉरफीचर एंट्री, यस और नो? यस सर। हाँ, वो मिस हो गया क्या? हाँ सर, मतलब यहाँ पे सेपरेट करके दिया है सर, तो एक ही में कर देने से हो जाएगा ना सर, कंबाइन करने से? हाँ कंबाइन भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा एंट्री।
कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अलग अलग ही बेटर है, क्योंकि ठीक है उसमें सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, हाँ देख लो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। अभी क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ना। अभी मैं ये क्वेश्चन लूंगा तो ये 1.5 आवर हो जाएगा सुबह। यस सर। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। अगर आज अभी क्लास नॉर्मल दूसरा का ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगा, टाइम मिलेगा तो तुम रहना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा ये आफ्टर द क्लास। ओके ओके सर। ओके। It's good that you are practicing the sums. I am very happy for that. Okay, all of you, for all of you, give yourself a big round of applause. Okay, because you are practicing the sums and you are asking the questions. That is a great. That is great actually. Okay, because I am here now, so I can explain the doubts, queries, if any. Then you will be clear with the concept. I am happy for you. Okay, now let us go to the next topic. This question number 14, 21 I'll explain. Subha, don't worry, I'll explain the whole sum. Okay. Yes sir, yes sir. Ha. Now come to question number, not question number, come to page number 46. Follow on public offer, FPO and rights issue. ठीक है. Now what is FPO? Before knowing about FPO, you should know about IPO. What is IPO? Initial public offer. Initial public offer. This is follow on public offer. Follow on public offer. Mention करो, note करो कहीं पे. What is initial public offer? When the company is issuing the shares for the first time to the public, then it is called IPO, which we have discussed till now, issue of shares. Okay. Now, it may so happen that company needs additional capital. Yes or no? Now, company initially issued the shares, it received the capital, it has started the business. Business is going on fine. Now the company needs additional capital to invest more. Say for example, to open a branch somewhere else. Then the company has the right to go for public offer again. So the subsequent offers which the company is going, they are all called FPO. I mean, only the initial or the first one is called initial public offer. All the subsequent offers, it is called, what it is called? Big offer. Huh? All the subsequent offers, what it is called? Sir, FPOs. FPOs. Follow on public offers. Follow on in the sense, following the initial offer. Subsequent offers we call it as. ठीक है. Follow on public offer. For example, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुआ था, वो मैंने एक क्लॉज बोला है एमओए में, कैपिटल क्लॉज. से फॉर एग्जाम्पल उसका लाइफ टाइम में कितना कैपिटल रेज कर सकता है थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स. Yes or no? So for example, the total capital which the company can raise, वो कैपिटल क्लॉज देखो अच्छा से, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, याद है? कैपिटल क्लॉज, उसमें जो लिखा रहता है वही मैक्सिमम कंपनी रेज कर सकता है. से फॉर एग्जाम्पल उसमें है 1 करोड़ शेयर्स. ओके,
इनिशियल पब्लिक ऑफर में ऑलरेडी 50 लाख शेयर्स इश्यू किया है, तो मैक्सिमम और फर्दर पब्लिक ऑफर में 50 लाख इश्यू कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑलरेडी 1 करोड़ इश्यू किया, अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर में 90 लाख शेयर्स ऑलरेडी इश्यू किया, अभी फर्दर पब्लिक ऑफर में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में मैक्सिमम 10 लाख शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, कैपिटल क्लॉज में ऑफ एमओए, उसमें अगर लिखा है 1 करोड़ शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, 1 करोड़ शेयर्स 10 रुपीज, 10 करोड़ इज द ऑथराइज कैपिटल। एज्यूम ऑलरेडी आईपीओ में 90 लाख शेयर्स इश्यू कर लिया, तो मैक्सिमम बाद में एफपीओ में 10 लाख ही इश्यू कर सकते हैं। क्लियर विद द एग्जाम्पल? काइंडली रेस्पॉन्ड। क्लियर विद द एग्जाम्पल? Yes, sir. हाँ। Now assume out of this balance 10 lakhs, now in the first FPO, company is issuing 5 lakh shares. First FPO, 5 lakh shares. Company will again, this time the company will not give prospectus, because prospectus is already issued in the initial public offer. Company, if the company thinks so, it can give the prospectus also, okay, and then it will issue 5 lakh shares, they'll subscribe, and then the total capital comes to 95 lakhs. 95 lakhs into 10 rupees, you can say 9.5 crore, okay. कितना बचा है और सेकंड एफपीयू में फिर जा सकते हैं 5 lakhs, फिर सेम, these are all called follow on public offers. Follow on public offers process is same, entries also will be the same, similar to initial public offer. So here there is no difference, you just have to understand the concept, difference between IPO and FPO. Clear? Now here there is one concept called rights issue when it comes to FPO. Sir, what is this difference? Rights issue, what is the rights issue? See clearly here in the example, capital is 1 crore, IPO में already 90 lakhs shares issue किया है। जब issue किया था, सोच लीजिए issue किया 12 रुपीस में, 10 रुपीस फेस वैल्यू है, 12 रुपीस में issue किया होगा प्रीमियम में, ठीक है। अभी बिफोर गोइंग टू द एफपीओ, I am telling you the market price of the share. Market price of the share, say for example 90 rupees है share. सर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 90 रुपीज मार्केट प्राइस हो सकता है क्या? यस हो सकता है। सर कैसे है? स्टॉक मार्केट में होता है ना, यस। स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी लिस्ट किया था, कंपनी हैज बीन लिस्टेड, लिस्टेड इन द सेंस, लिस्टिंग इन द सेंस स्टॉक मार्केट्स में रजिस्टर करना इनडायरेक्टली, ऑफलाइन सेलिंग ही नहीं ऑनलाइन भी सेल कर सकता है लोग, कोई भी, एनीवेयर इन, फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवन कैन परचेज दिस शेयर्स, एनीवन कैन सेल दिस शेयर्स, यस। So initially the face value is 10 rupees. While issuing, it has been issued for 12 rupees, 2 rupees premium. If you see the market price, it is 90 rupees. Companies making good profits. So the market price has gone substantially. Okay. Abhi, now if you want to buy the share, you cannot buy from the company, right? Because these shares are currently with the shareholders. Yes or no? Now if you want to buy any share, company is not going to issue anything. Suppose there is no FPO, assume there is no FPO, IPO हो गया था, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, अभी मार्केट प्राइस हो गया 90 रुपीज। अभी कोई अगर इस शेयर को परचेज करना चाह रहा है, वो कहाँ पे परचेज करना है? जाके स्टॉक मार्केट पे।
स्टॉक मार्केट पे जाके परचेस करना है, स्टॉक मार्केट पे जाके परचेस करना है तो वो रेट देखा है 90 रुपीज़। अगर 100 शेयर्स खरीदना है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 90 इंटू 100, 9000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर वो 100 शेयर्स खरीदना है तो 100 इंटू 90 रुपीज़, वो 9000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। समझ गया? दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो। So now company is going for FPO, market price is 90, yes, FPO, it is face value is 10 rupees, company is issuing the shares, say for example at premium, and the premium is say for example 15 rupees, I mean issue price is 15 rupees, premium कितना होगा, प्रीमियम कितना होगा, 5 rupees. 5 रुपीज़ होगा। तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है ना, इश्यू कर रहा है 15 रुपीज़ में, तो 5 रुपीज़ प्रीमियम है। ठीक है, सब लोग अभी मार्केट में जाके खरीदेगा नहीं, सब लोग आके इसमें इश्यू ऑफ फिर सब्सक्राइब करेगा इसमें, क्योंकि मार्केट में 90 रुपीज़ है। समझ गया? सब लोग इसमें ये करेगा, यस और नो? जो मार्केट में जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है उसको नुकसान होगा कि नहीं, यस और नो? Yes sir. शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी जो शेयर्स है उसका वर्थ है 90 रुपीज। अगर कंपनी इश्यू कर रहा है कम अमाउंट के लिए, वो लोग लॉस होगा, यस और नो? यस सर। हाँ, सो ऑल्सो द शेयर होल्डर्स आर होल्डिंग द शेयर्स टिल डेट। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी स्टार्टिंग में जब इश्यू किया था 12 रुपीज़ में इश्यू किया, अभी तक सोच लीजिए 10 साल के बाद 90 रुपीज़ हुआ है शेयर। सो 10 साल होल्ड किया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन है? ये 90 लाख शेयर होल्डर्स, 90 लाख शेयर होल्डर्स। वो लोग 90 लाख शेयर होल्डर्स को होल्ड कर रहा है, यस और नो? एंड दे हैव बीन इन द कंपनी टिल लास्ट 10 years. सो कंपनी कैनॉट डायरेक्टली इश्यू टू द आउटसाइडर्स फर्स्ट। कंपनी जब एफपीओ पे जा रहा है, फर्स्ट कंपनी क्या करना है, आके इन लोग को पहले ऑफर करना पड़ेगा। समझ गए? बिकॉज दे आर लॉयल शेयर होल्डर्स टिल फ्रॉम द लास्ट 10 years, कंपनी cannot directly issue to the outsiders. Clear? कहाँ पे इस पॉइंट है? ये पेज नंबर पेज नंबर 46 में देखो, द टर्म्स राइट्स इश्यू हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट. Rights issue means an offer of specified securities by the listed issuer to the shareholders of issuer and for the said purpose. At any time when a company proposes to increase its subscribed share capital, such shares shall be offered to persons who at the date of offer are holders of equity shares of the company in proportion as nearly as the circumstances to the payroll by sending a letter of offer. समझ गया? ये अंडरलाइन कर लो, ये मार्क कर लो. अकॉर्डिंगली वेयर एट एनी टाइम ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल proposes to increase its subscribed capital by the issue of further shares, such shares shall be offered to persons who at the date of offer are holders of the equity shares of the company in proportion as nearly as circumstances admit by sending a letter of offer to them. समझ गया? जो जब भी एफपीओ पे जाएगा
तो सीधा आउटसाइडर्स को ऑफर नहीं करना है, जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उसको पहले ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट इस पेज नंबर 47 में आ जाओ, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। उसमें देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हु हैव बीन ऑफर्ड राइट शेयर्स एंड नो इसमें यूजुअली ए कंपनी ऑफर्स राइट्स इश्यू एट ए प्राइस विच इज लोअर देन मार्केट प्राइस, समझ गए। यूजुअली ए कंपनी ऑफर्स राइट्स इश्यू एट ए प्राइस विच इज लोअर देन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स so that existing shareholders may get the monetary benefit of being associated with the company for a long time. Example 10 years is such a long time. वो कंपनी के साथ 10 years एसोसिएट किया है ये 90 लाख शेयर होल्डर्स, सो डायरेक्टली जब ये 5 लाख इश्यू कर रहा है, डायरेक्टली बाहर में जाके आउटसाइडर्स को इश्यू नहीं करना है, पहले इन लोग को ऑफर करना है, सो दैट दे विल गेट एडवांटेज। पहले ये लोग को ऑफर करने से क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मार्केट प्राइस से जनरली लोअर में ऑफर करेगा, यस और नो। से फॉर एग्जांपल इधर 10 रुपीज फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस 90 है, कंपनी कैन इश्यू एट 50 रुपीज ऑल्सो। 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 50 रुपीज है, इश्यू कर रहा है, प्रीमियम कितना होगा, 40 रुपीज होगा, वेरी गुड, 40 रुपीज होगा प्रीमियम, यस और नो, but it is still less than market price. Still all the shareholders will subscribe because market price is 90, you are getting for less than 90, समझ गए। So rights issue I am concluding, whenever the company is going for further public offer, you need to issue the shares, I mean company needs to issue the shares first to the, I mean offer the shares first to the existing shareholders who are associated with the company for long years, ठीक है। तो existing shareholders को हमने पहले ऑफर करना चाहिए and the right issue, so this offering of shares in case of further follow on public offer to the existing shareholders, this is called rights issue, clear, दिस इज कॉल्ड राइट्स इश्यू। एक सम करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्लियरली। कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, शुभ रीड द क्वेश्चन। Yes, sir. A company is planning to raise funds by making right issue of equity share to finance its expansion. The existing equity share capital of the company is rupees 50 lakhs. The market value of its share is rupees 42. The company offers to shareholders the right to buy 2 shares at rupees 11 each for every 5 shares held. You are required to calculate theoretical market price after right issue, the value of rights and percentage increase in share capital. इस सम को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में भी दिया था ये सम, उसके पहले अटेम्प्ट में भी दे दिया ये सम। इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम है इस चैप्टर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी ट्वाइस, आस्क मी थ्राइस, आस्क मी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नो प्रॉब्लम, ओके। इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ए कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स बाय मेकिंग राइट्स इश्यू, प्लानिंग टू रेज फंड्स इन द सेंस company is already existing, it is going for FPO. While the company is going for FPO, it has to offer to existing shareholders first, yes or no? So by making rights issue of equity shares to finance its expansion you can assume, suppose the company is going to set up a branch in other state, that is called expansion. So for setting a branch, company need funds, so for funds it is going for FPO
and it is called as rights issue because it is offering the shares first to existing shareholders. Okay, existing share capital of the company, basically equity share capital, how much? 50 lakh rupees. This is rupees, not shares. Rupees है. Okay, the market value of its shares is rupees 42. ये market price है, ये per share, market price per share ये, ठीक है. The company offers its shareholders the right to buy 2 shares at rupees 11 each for every 5 shares held. ये लाइन अच्छा से समझना पड़ेगा. The company offers its shareholders, because offering to the existing shareholders, that itself it is called rights issue. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now कैसे क्या ऑफर कर रहा है? ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर्स द राइट टू बाई 2 shares at 11 rupees each for every 5 shares held. मतलब उसके पास जितना शेयर्स है डिवाइडेड बाय 5 into 2. एग्जाम्पल, वन शेयर होल्डर इज होल्डिंग 500 शेयर्स, उसको कितना राइट शेयर्स मिलेगा? एनीवन? एनीवन, एनी गेस? 200 शेयर मिलेगा. 200 400 शेयर्स. कैसे मिला है? डिवाइडेड बाय 5 into 2. 400 कैसे है? 200 शेयर सर. 200 होगा. 500 एक बंदे के पास है. सी हियर क्लियरली, फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मतलब 500 शेयर्स को 5 शेयर्स करके डिफरेंट पार्ट्स बनाओ तो 100 पार्ट्स है. तो 100 ईच पार्ट को कितना मिलेगा? 2 शेयर मिलेगा. फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड 2 शेयर मिल जाएगा. मेरे पास 5 ही शेयर है, मुझे कितना मिलेगा? सपोज धनेश इज होल्डिंग 5 शेयर्स इन दैट कंपनी, कितना राइट शेयर्स मिलेगा? सर 2 ही मिलेगा. 2 ही मिलेगा. तो मेरे पास 5 है, 2 मिलेगा. आपके पास 50 है, कितना मिलेगा? 20 मिलेगा. समझ गया? मेरे पास 5 है, 2 ही मिल रहा है. आपके पास 50 है, 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा मिल जाएगा, 20 मिलेगा. एक बंदे के पास 500 शेयर्स है, उसको कितना मिलेगा? 200 राइट शेयर्स मिलेगा. ठीक है. वो राइट शेयर्स 200 खरीदने के लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को? एनीवन? सर 11 रुपए. 11 रुपया पर शेयर. सो 200 into 11 कितना होगा? 2200 होगा. ये एग्जाम्पल है. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. समझ गया कॉन्सेप्ट? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थियरिटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट्स इश्यू. राइट्स इश्यू करने के बाद मार्केट प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. आपको राइट्स इश्यू करने के पहले मार्केट प्राइस कितना था क्वेश्चन में बोला है. कितना था? 42 रुपीज. यस और नो? यस और नो? 42 रुपीज मार्केट प्राइस है तो राइट्स इश्यू के पहले. अभी राइट्स इश्यू के बाद मार्केट प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. लिख दो, बुक में लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ थियरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट्स इश्यू. ये पहला पार्ट है, लिख दो बुक्स में. थियरेटिकल मार्केट प्राइस कितना होगा वो लिख दो. ठीक है. अभी देखो फर्स्ट का कैलकुलेशन देखो इधर. सोच लो मार्केट प्राइस 5 शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस ऑफ 5 शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ 5 शेयर्स
held before rights issue. Before rights issue, मैं नया वाला में लिख रहा हूं, पहला वाला मार्केट प्राइस ऑफ 5 shares held before rights issue. कितना था देखो, 5 shares इंटू 42 कितना अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा बोलो फास्ट। 5 इंटू 42 210 रुपीज है, ठीक है, 210 रुपीज। इधर बगल में लिख दो, मैंने एक शेयर होल्डर जो 5 शेयर्स होल्ड कर रहा है, मैं उसका सिनेरियो लिया था। एग्जाम्पल मिस्टर ये है, मिस्टर ये, इसके पास मिस्टर ये इसके पास 5 शेयर्स है, ठीक है। इधर बगल में ये टेबल भी फॉलो कर लो, अच्छे से समझ में आएगा। उसके पास 5 शेयर्स है, अभी उसके पॉकेट में कितना वर्थ ऑफ शेयर्स है, 5 इंटू 42 210। सर वर्थ फेस वैल्यू से करेगा कि या मार्केट प्राइस से करेगा, मार्केट प्राइस से। अभी वो बंदा स्टॉक मार्केट में जाके वो 5 शेयर्स बेच देगा तो उसको 210 रुपीज पॉकेट में मिल जाएगा, क्लियरली, यस और नो। अभी उसको कितना राइट शेयर्स मिल गया, 2 शेयर्स राइट शेयर्स इश्यू किया था ना, राइट्स इश्यू, उसको 2 शेयर मिल गया क्योंकि वो 5 होल्ड कर रहा है, उसको 2 शेयर मिल गया। वो 1 शेयर के लिए कितना पेमेंट कर रहा है, 11 रुपीज। कितना था ये, 22 रुपीज, यस और नो। अभी उसको 5 शेयर है, अभी उसके पास 2 शेयर और आ गया, ठीक है कि नहीं। उसके पास ऑलरेडी 5 शेयर्स है, राइट्स इश्यू करने के बाद वो 11 रुपीज पेमेंट किया था, 11 रुपीज पेमेंट किया तो उसके पास और 2 शेयर्स आ गया, ठीक है। ये दोनों का टोटल वैल्यू करो, 232 होगा, यस और नो, यस और नो। 232 है। अभी उसके पास टोटल कितना शेयर्स है, 7 शेयर्स है कि नहीं। अभी 232 डिवाइड बाय 7 करो, 232 डिवाइड बाय 7 करो, कितना था, थियरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट्स इश्यू, टू 32 डिवाइडेड बाई 7 कितना है, 33.14। दिस इज द थियरी, मतलब थियरी में इतना हो सकता है, लेकिन एक्चुअली कितना होगा पता नहीं, स्टॉक मार्केट में एक्चुअली कितना होगा पता नहीं। ये इन थियरिटिकली कितना हो सकता है। सर कैसे आया था, आई एम एक्सप्लेनिंग वन सेकेंड। देखो ये 5 शेयर्स 42 रुपीज 210 रुपीज है, ये वर्थ ऑफ शेयर्स है, ठीक है। 2 राइट शेयर्स आ गया, यू मे आर्ग्यू दैट सर 2 इंटू 42 करना था ना, क्यों 11 ही किया था, आपका खर्चा कितना हुआ था वही लिख दो, 22। आपका ना खर्चा 22 रुपीज ही हुआ, आपके पॉकेट से उतना ही गया, ठीक है। अज्यूम ये 5 शेयर्स भी आप मार्केट से खरीद रहे हो, अभी कितना खर्चा पड़ेगा आपको, 42 रुपीज पड़ेगा, यस और नो। तो आपको इनडायरेक्टली 210 रुपीज खर्चा हुआ 5 शेयर्स खरीदने में। अज्यूम सिनारियो अज्यूम नाउ ये 2 शेयर्स आपको कितना खर्चा हुआ है, 22 रुपीज हुआ है।
जो अभी टोटल वैल्यू 232 है, आपके पास टोटल 7 शेयर्स है, वो 232 डिवाइड बाई 7 33 है। पहले मार्केट प्राइस है 42, अभी हो गया 33। दिस इज फैक्ट। आफ्टर राइट्स इश्यू जनरली शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। यस और नो? डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, सप्लाई ज़्यादा हो गया एट लोअर प्राइस तो इनडायरेक्टली प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स वाई प्राइस केम लो। दिस इज सप्लाई, राइट्स इश्यू इज नथिंग बट सप्लाई इनटू द मार्केट, सप्लाई एट लोअर प्राइस। ओके, इसलिए लो हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट, एनीवन, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट आई विल टेक इट ऑन। Any doubt? Any doubts? Anjana Das, No, sir. Manish, any doubt? Rakesh Sharma, No, sir. Vichika Saikia, any doubt? No, sir. Okay. Shall I continue? Yes, sir. हाँ, सेकंड पॉइंट क्या था? वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट is nothing but market price before rights issue minus market price after rights issue. कितना था बोलो? 42 minus 42 minus 33.14. 33.14 तो कितना होगा? 8.86। सर ये वैल्यू क्या था? ये वैल्यू ऑफ राइट मतलब क्या होगा? थियरिटिकल मार्केट प्राइस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आफ्टर राइट्स इश्यूड इन थियरी मतलब एग्जैक्टली कितना होगा आई कैन नॉट अज्यूम। थियरी में मैं जस्ट आई एम एज्यूमिंग कितना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड थियरिटिकल मार्केट प्राइस। वो हमने फर्स्ट पॉइंट में चेक कर लिया। सेकेंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ राइट, मार्केट प्राइस बिफोर राइट्स इश्यू माइनस मार्केट प्राइस आफ्टर राइट्स इश्यू। ये जो दोनों का बीच में डिफरेंस है इसको वैल्यू ऑफ राइट बोलते हैं। सर वैल्यू ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट क्या था? जिसको राइट शेयर्स मिला था, हु हैज रिसीव्ड द राइट शेयर्स, it is not mandatory that he has to subscribe for the right shares. Yes or no? Although the company is offering at lower price than market price, it is not mandatory that shareholder has to subscribe. It is his wish. Yes or no? The shareholder is not having money in his pocket, he will not subscribe. Yes or no? But at the same time he will not lose his right also. What he can do? Shareholder can transfer the right to somebody else. This concept is called renouncing of share, renouncing of rights. Renounce लिख दो कहीं पे, renounce of right, renouncing of right. Renouncing means you are transferring your right to someone else. Yes or no? Suppose मैं 5 shares hold कर रहा हूँ, मुझे 2 rights issue मिलेगा, मतलब 2 right shares मिल जाएगा। मार्केट प्राइस है 42, मैं 11 रुपीज़ में खरीद सकता हूँ। यस और नो? तुरंत मैं भेज सकता हूँ, तुरंत भेजने से 33 रुपीज़ में भेज सकता हूँ। मुझे 11 रुपीज़ में मिल गया, 33 रुपीज़ में भेज दिया। प्रॉफिट कितना है? 22 रुपीज़ पर शेयर, तो 44 रुपीज़ में प्रॉफिट बना दूंगा ना? यस और नो? मैं प्रॉफिट बना लूँगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ये 11 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं राइट को रिनाउंस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल किसी और को दे सकता हूँ। तो मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको दे दिया, ये रिनाउंस कर लिया राइट को। इसका मतलब क्या था? मुझे दो शेयर्स मिल जाएगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। ठीक है, उसका प्रोसेस रहता है
कंपनी जब एप्लीकेशन वगैरह सब मिल जाता है, वो हम किसको रिनाउंस कर रहे हैं उसका नाम वगैरह सब दे सकता है, तो वो बंदा 11 रुपीज पे कर देगा। यस और नो? 2 शेयर्स इंटू 11 22, 2 शेयर्स इंटू 11 कितना था? 22, मतलब वो इनडायरेक्टली 11 रुपीज में खरीद रहा है, 33 रुपीज में बेच रहा है, वो 22 रुपीज प्रॉफिट कर रहा है। यस और नो? समझ सर गया? ये वाला फिर से समझाइए ना। ये पार्ट ना? 11, हाँ हाँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ देख लीजिए, मेरा पास 5 शेयर्स है तो मुझे 2 राइट शेयर्स मिल जाएगा। मैं वो 2 राइट शेयर्स मुझे लेना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? रिनाउंस कर सकता हूँ। रिनाउंस मतलब मेरा फ्रेंड को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र लेकिन फ्री में नहीं करूँगा, क्या करूँगा? मैं फ्रेंड से पैसा लूँगा। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट। समझ गया? जो मार्केट प्राइस का फ्लक्चुएशंस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस राइट्स इश्यू, बिकॉज यू आर हैविंग द राइट, because you are the existing shareholder. So if you are not subscribing the shares, you can renounce the right to your friend. So minimum इतना तुम चार्ज कर सकते हो तेरा फ्रेंड से, ठीक है? क्योंकि पहला मार्केट प्राइस इतना था, बाद में मार्केट प्राइस इतना हो गया, तो राइट का वैल्यू ऑफ राइट का अगर तुम वैल्यू करोगी, मतलब तुमको राइट्स इश्यू मिल रहा है, तो उसको अगर क्वांटिफाई करना है, मतलब उसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में लेके आना है, उसको वो एग्जैक्टली 8 रुपीज बोलते हैं, 8.86। तो मिनिमम तुम जब राइट को रिनाउंस कर रहे हैं, मिनिमम 8 रुपीज में तुम रिनाउंस करो, मिनिमम। ठीक है? ओके सर। समझ गया ना? जी। हाँ, अगर ये 2 रुपीज अगर वो 2 शेयर्स ले लेगा, 11 रुपीज है, ठीक है? वो उसका पैसा से कितना जाएगा? उसका पॉकेट से 22 रुपीज जाएगा। एग्जाम्पल, मेरा फ्रेंड है मिस्टर बी, ठीक है? उसको मैंने रिनाउंस कर दिया, सो ये रिनाउंस कर दिया, तो वो मिस्टर बी कंपनी को कितना पेमेंट करना है? 22 रुपीज। यस और नो? हाँ। अभी वो फिर मार्केट में चले जाएगा, तुरंत 33 रुपीज में बेच देगा। ये कितना था? अमाउंट बोल दो। 66। उसको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 44 हो रहा है। यस और नो? वो नेट प्रॉफिट 44 हो रहा है। तुमको मिनिमम इतना पेमेंट करना है, ठीक है? तुमको मिनिमम कितना पेमेंट करना है? 8.86। समझ गया? कैसे था? तुम ये ले लो, 5 इंटू 8 रुपीज कितना होगा? 5 इंटू 8 रुपीज 40 रुपीज, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया ना? 5 इंटू 8.86 से करो, कैलकुलेट करो फास्ट। 44.3 कितना? 44.3 44 पॉइंट आ गया ना? मैंने इधर एग्जैक्टली 33.14 नहीं लिया। अगर इधर 33.14 लेगा तो कितना होगा? देखो, 33.14 इंटू 2 66.28, 66.28 माइनस 22 रुपीज 44.28, तो 8.86 इंटू 5 44.28, एग्जैक्टली 44.3 आ गया। देख लो, समझ गया? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ गया? जी सर। हाँ, वैल्यू ऑफ राइट मतलब तुम जब रिनाउंस कर रहा है, मिनिमम तुम जो शेयर्स तुम होल्ड कर रहा है, पर शेयर तुम 8.86 तुम चार्ज कर सकते हो, तो जो किसी को तुम रिनाउंस कर रहे हो उसको, ठीक है? उस बंदा को ये सब कैलकुलेशन पता नहीं चलेगा, तो वो ले लेगा, क्योंकि मार्केट में 42 है, ये मुझे दे रहा है, ये मेरे से इतना पैसा ले रहा है,
तो बाद में मुझे 11 रुपीज में दे रहा है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। अच्छे से आप लोग कैलकुलेशन उधर लिख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ राइट मतलब यू आर सेलिंग योर राइट, you are selling your right, because you are the shareholder who is holding the shares, you are the beneficiary of that right shares, so you are having the right. Now you can sell that right also. The company is giving that flexibility. So how do you value that right? Theoretically you have to find out the price after rights issue. You can check the market price before rights issue from the stock market, and then you have to take the difference, do the math, and then you can sell the right at this amount. Clear? Yes sir. Now percentage increase in share capital, third point. परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल सिंपल है, 50 लाख शेयर्स है, 50 लाख रुपीस दिया था ना, यस और नो, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा राइट्स इश्यू बोलो। 50 लाख कैपिटल है तो एज्यूम करो फेस वैल्यू 10 रुपीज, तुम एज्यूम करो, ठीक है। 10 रुपीज है तो एक निकाल दो, 5 लाख होगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना होगा, कितना होगा बताओ फास्ट। 2 लाख होगा, 2 लाख होगा, तो 2 लाख राइट्स इश्यू एडिशनल है ना, 2 लाख राइट्स इश्यू एडिशनल है, ऑलरेडी 5 लाख शेयर्स है, अभी 2 लाख एडिशनल है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वही कैलकुलेट करना है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, परसेंटेज कितना होगा 2/5 इंटू 100 कितना होगा, परसेंटेज में बोलो फास्ट। फोर्टी 40%। कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर नहीं है क्यों, छोटा सा है लेकिन बड़ा वाला खरीद लो। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़े फास्ट एग्जाम में, तभी फास्ट आएगा, ठीक है। 40% डायरेक्टली 5 लाख इंटू 2/5 कर, 50 लाख इंटू 2/5 करने से 20 लाख आएगा इधर। 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, ये भी 40% होगा, ठीक है। ये दो मेथड है। तीसरा मेथड डायरेक्टली 2/5 करो, 2/5 इंटू 100, वो भी 40% ही है। सर 2/5 क्या था, राइट्स इश्यू का प्रोपोर्शन है, यस और नो। फॉर एवरी एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स 2 शेयर्स देगा, तो इनडायरेक्टली 2 शेयर बढ़ रहा है, तो 2 आउट ऑफ 5 इज नथिंग बट 5, 40%। यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। क्लियर विद द सम, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Clear with the sum? Clear Subhav? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Question number 23. Anjana Das, read the sum. Yes sir.
read the sum, read the sum. Yes, sir. Antique Limited has an issued capital of 20,000 equity shares of rupees 10 each, fully called up. The हाँ following decisions are taken by the company: हाँ to forfeit 100 shares, on which 5 per share has been paid up, and to be issued at rupees 15 per share as fully paid up. ये क्या होता है To फॉरफीचर issue, एंड 1 सेकेंड, इस लाइन का मीनिंग क्या था? फॉरफीचर एंड री इश्यू, यस और नो? यस और नो? फॉरफीचर एंड री इश्यू. नेक्स्ट. to issue right shares in the ratio of 1 fully paid up shares for every 4 existing shares held at rupees 15 per share. Assuming that the company has sufficient to general reserve, the above throw journal entry. जर्नल एंट्रीज देने के लिए बोल रहे हैं सभी ट्रांजैक्शन का. पहला फॉरफीचर एंड री इश्यू है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. देख लो कितना फॉरफिट कर रहा है, 100. तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिख दो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? फुल्ली कॉल्ड अप बोला है क्वेश्चन में. देखो फर्स्ट लाइन में फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपीज पूरा कॉल किया है. तो 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, 1000 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होना चाहिए. क्यों डेबिट? पहले हमने क्रेडिट करता है ना, कॉल जब कॉल करता है सब एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं शेयर कैपिटल में. फिर जब अलॉटमेंट मनी के लिए ड्यू एंट्री पास करते हैं तभी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. ये सब अगर पैसा शेयर अगर फॉरफिट कर रहा है इनडायरेक्टली, कल से शेयर नहीं रहेगा तो ये इक्विवेलेंट अमाउंट पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल से निकालना पड़ेगा. तो निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, इसको निकालने के लिए रिवर्स करना है, डेबिट करना पड़ेगा. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप अमाउंट 1000 रुपीज. टू कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स कितना था? 5 फॉरफिट 100 शेयर्स ऑन विच 5 पर शेयर हैज बीन पेड अप. इसका मतलब है 10 कॉल किया तो 5 रुपए पे किया, कितना पे नहीं किया? कितना पे नहीं किया? हाउ मच वॉज अनपेड? 5 रुपीज. वेरी गुड. 5 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स होगा. तो पहले आपने कॉल्स इन एरियर्स में बुक किया होगा, इसलिए अभी रिवर्स करो. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 100 इंटू 5, ठीक है. सॉरी 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स पहले डेबिट किया होगा ना, अभी रिवर्स करो. 2 कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट 500. नेक्स्ट 2 फॉरफीचर अकाउंट. अभी कितना पैसा मिल गया उस शेयर्स में? सब प्रॉफिट है तो इसलिए फॉरफीचर अकाउंट में भेज दो 100 इंटू 5, 500. क्लियर? राकेश शर्मा आर यू देयर? यस सर. हाँ क्लियर ना फर्स्ट एंट्री? यस सर. हाँ रीइश्यू के टाइम में एंट्री क्या होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट. हाँ बैंक अकाउंट कितना आ रहा है पैसा? हाउ मच इज द अमाउंट बीइंग रिसीव्ड? सर 15 रुपीज. 15 रुपीज. सो 100 इंटू 15 कितना होगा? 1500. बिकॉज शेयर्स आर रीइश्यूड एट 15 रुपीज. 15 इंटू 100, 1500. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 10 रुपीज, 1000 रुपीज. Reissue at premium, so 5 rupees premium to securities premium 500. Clear ना? 100 into 5 rupees to securities premium. ठीक है. नेक्स्ट जो जब रीइश्यू करते हैं जो प्रॉफिट फॉरफीचर अकाउंट में है वो सब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. ठीक है. तो 100 शेयर्स फॉरफिट किया, 100 शेयर्स रीइश्यू किया. 100 शेयर्स में प्रॉफिट कितना था? फॉरफीचर अकाउंट देखो कितना बैलेंस है?
How much is the balance? Shubha? 500. 100. 500, yes. 500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो. फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 500, उसको नलीफाई करने के लिए अभी डेबिट करना है. फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व इज ए रिजर्व, इट गोज टू बैलेंस शीट. These are the entries of forfeiture and reissue. I am not doing in the board because this is the same concept. Next, अभी राइट्स इश्यू बोल रहा है. कंपनी का टोटल इश्यू कैपिटल कितना था? 20,000 शेयर्स. यस और नो? 20,000 शेयर्स ना. क्वेश्चन में देखो, अभी राइट्स इश्यू कितना रेशियो में कर रहा है? 1:4. इसका मतलब है जिसके पास 4 शेयर्स है उसको 1 शेयर मिल जाएगा. तो मतलब 20,000 इंटू 1/4. समझ गया? सर कुछ डाउट है सर. जैसे 100 शेयर्स को फोरफिट किया है तो मतलब 100 शेयर्स से इशू किया तो सर उसका अलग से कैपिटल रिजर्व का नहीं निकालना पड़ेगा सर? समझा नहीं? कम अगेन. सर 100 शेयर्स को फोरफिट किया तो री इशू के टाइम पे भी 100 शेयर्स को ही लेके गया तो सर कैपिटल रिजर्व पे उसका अलग से कितना अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया? जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्काउंट वाला पे किए थे ना सर. हाँ, अभी डिस्काउंट तो नहीं है ना, लॉस नहीं है ना अभी. तो सर डायरेक्टली यहाँ पे मतलब 500 डाल दिए. हाँ, जैसे 500 जितना था 500 लेके गए कैपिटल रिजर्व बिकॉज होल 500 इज प्रॉफिट. यस सर. If they are suppose in the same exam, in the same question, suppose company is reissuing at 9 rupees. या Okay? तब क्या होगा? 100 rupees into 1 rupee डिस्काउंट है. 100 शेयर्स into 1 rupee तो 100 rupees लॉस होगा कंपनी को. तो ऑलरेडी प्रॉफिट 500 है, 100 rupees लेस करो, 400 कैपिटल रिजर्व में जाएगा. ठीक है? दोनों बगल बगल में बैठेगा. देख लो रिजर्वेशन सरप्लस में क्या होगा. रिजर्वेशन सरप्लस बैलेंस शीट अगर देखोगी, बैलेंस शीट कंपनी का रिजर्वेशन सरप्लस पहले शेयर कैपिटल होगा, बाद में रिजर्वेशन सरप्लस. रिजर्वेशन सरप्लस में देखो ये क्या था? कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व. सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इधर ही होगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो रिजर्व. उसमें ही बैठेगा वो. हाँ सर. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ में बैठेगा. दोनों बोथ आर प्रॉफिट. मैं क्या लॉजिक बोला था? अगर लॉस है रीइश्यू के समय तब वो पहला जो प्रॉफिट है उससे कम करके नेट प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में भेजो. इस एग्जाम्पल में शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, तो लॉस नहीं है. जो भी फॉरफीचर अकाउंट में 500 रुपीज है सब प्रॉफिट होगा, तो उसको पूरा कैपिटल रिजर्व में भेज दो. क्लियर? ठीक है सर. हाँ. अभी राइट्स इश्यू कितना होगा? कितना नंबर ऑफ शेयर्स बोलो? राइट्स इश्यू कितना है बोलो? तो एग्जिस्टिंग 20,000 शेयर्स है. फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड 1 शेयर दे रहा है राइट्स इश्यू. टोटल राइट्स शेयर्स कितना होगा? फास्ट. Anyone? 5,000. 5,000. Very good. 5,000 rights issue होगा. Rights issue at what price? कितना है राइट्स इश्यू? 15 रुपीज. 15 रुपीज. अभी इसका एंट्रीज पास करना है. देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. 5,000 शेयर्स ना इंटू 15. ये लमसम है, इंस्टॉलमेंट्स बोला नहीं ना, तो लमसम ले लो. एप्लीकेशन में पूरा मनी आ गया. 5,000 इंटू 15 रुपीज कितना होगा? 75,000 होगा. दिस इज द फर्स्ट एंट्री.
Equity share application account debit to equity share capital to securities premium. This is the second entry. जैसा नॉर्मल इश्यू में जैसा एंट्रीज होता है, राइट्स इश्यू में भी सेम एंट्रीज. ठीक है. क्लियर. Any doubts in this question? No, sir. ठीक है. We are done with rights issue now. Next concept is bonus issue. Bonus issue. किसी any idea about bonus issue? Anyone? सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दिया जाता है. करेक्ट. फ्री में शेयर्स दिया जाता है. फ्री शेयर्स. दिस इज कॉल्ड बोनस. यू माइट हैव हर्ड सो एंड सो कंपनी हैज डिक्लेयर्ड बोनस बोनस बोनस. ऐसा ना, बोनस इश्यू किया, बोनस इश्यू किया. आपने मूवीज में भी देखा होगा. यस, बोनस शेयर्स, बोनस राइट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू? हाँ हाँ, बोलो शुभा. सर राइट्स में मतलब पैसा देना पड़ता है, बोनस में पैसा नहीं देना होता. एटलीस्ट थोड़ा कुछ पैसा देना पड़ेगा राइट्स में. मार्केट प्राइस से कम होगा लेकिन थोड़ा कुछ पैसा देना पड़ेगा. बोनस में फ्री, जीरो. तुमको फ्री में शेयर्स मिल जाएगा. सर सेम कॉन्सेप्ट है. मार्केट प्राइस 42 रुपीज है, तुमको जीरो में मिल रहा है शेयर. एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल. मार्केट प्राइस 42 है, तुमको 20 रुपीज में मिल रहा है, वो राइट्स इश्यू. ठीक है. मार्केट प्राइस 42 है, तुमको जीरो में मिल रहा है, वो बोनस इश्यू. फ्री में दे रहा है. ठीक है. समझ गया? बोनस इश्यू का एंट्रीज क्या होता है? पेज नंबर 50 में आ जाओ फास्ट. बोनस इश्यू का एंट्री क्या होता है? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. ठीक है. फ्री रिजर्व. सर व्हाट इज दिस फ्री रिजर्व्स? कंपनी फ्री में शेयर्स दे रहा है. यस और नो? कंपनी फ्री में शेयर्स दे रहा है, तो वो कहां से भर्ती करेगा? उसके पास रिजर्व्स होना चाहिए. यस और नो? फ्री में शेयर्स दे रहा है, तो कल मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा. यस और नो? प्राइस कम हो जाएगा. दैट इज अ डिफरेंट इश्यू. बट बोनस कैसे दे सकता है? बाय कैपिटलाइजिंग इट्स रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स. So basically companies which are having reserves, which are having plenty of reserves, those companies only will issue bonus. So companies has to capitalize their reserves. पहले free reserves होना चाहिए, तभी तो बोनस दे पाएंगे. Reserves मतलब क्या था? Past years profits है. Yes or no? Today's reserve balance is nothing but company's past profits. Do you agree with me? Reserve. कंपनी ने रिजर्व करके रखा है पैसा बहुत सालों से. Yes or no? That is reserves.
नेक्स्ट फ्री रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स, इक्विटी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दीज आर द टू एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज है, देख लो अच्छे से। आपका बुक में जो सेकंड पॉइंट है बी, पॉइंट बी ऑन डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, ये ड्यू एंट्री है, जब एक्चुअली बोनस शेयर्स अलॉट किया जाता है तब ये एंट्री है। डिक्लेयर के समय के डिक्लेरेशन जब करते हैं तब ये एंट्री पास करता है, ये टेम्पररी अकाउंट है बोनस टू शेयर होल्डर्स बोल के। ये क्या था, फ्री रिजर्व्स डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, यस और नो राखी शर्मा? Yes, sir. Reserves will have which balance? Which balance? Reserves generally have which balance? So credit. Credit balance. Credit balance. That's why they are going to liability side. Yes or no? Asset side कब जाएगा? Debit balance है तब जाएगा। ये reserve से liability side जा रहा है, तो ये credit balance होगा। रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहा है, मतलब क्या था, रिजर्व्स को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करना है तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, उसको रिड्यूस करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो रिजर्व बैलेंस कम हो जाएगा। इनडायरेक्टली क्या था, रिजर्व से बोनस इश्यू कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. हाँ, यस सर। नेक्स्ट, ये जो टेम्पररी अकाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्रेडिट है इधर डेबिट होगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ गया? शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा ना, बोनस के नाम पे पैसा नहीं आ रहा है। इधर देखो पहले क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा ही तो लिखा है हमने, राइट्स इश्यू में देखा है। तो इधर बैंक नहीं है, बैंक के जगह में सिर्फ फ्री रिजर्व्स आया था, वही डिफरेंस है, यस और नो? पहले बैंक क्यों था राइट्स इश्यू में, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा राइट्स इश्यू में, लेकिन बोनस में कुछ पैसा नहीं देगा, तो बैंक अकाउंट की जगह में क्या अकाउंट आया था, क्या अकाउंट आया था शुभ? सर फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स, समझ गया? अभी फ्री रिजर्व्स क्या क्या होते हैं, हर रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, आपको क्वेश्चन में फ्री रिजर्व कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक नोट्स फास्ट। मुझे 6-10 तक है क्लास, है मैंने 40 से लिया था ना, 6-10 तक है। मैं फ्री रिजर्व्स क्या था, फ्री रिजर्व्स क्या नहीं था, मैं नोट्स दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में ये फ्री रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व नहीं है, आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? फ्री रिजर्व्स क्या था, व्हाट आर फ्री रिजर्व्स, व्हाट आर नॉट फ्री रिजर्व्स? सर क्यों फ्री रिजर्व्स नॉट फ्री रिजर्व्स आइडेंटिफाई करना है? फ्री रिजर्व से ही बोनस दे पाएंगे, विच आर नॉट फ्री रिजर्व उससे बोनस नहीं कर पाएगा। सर क्यों, ये क्यों आइडेंटिफाई करना है? जो पहला जो एंट्री है फ्री रिजर्व से अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये फ्री रिजर्व कौन सा रिजर्व डेबिट करेगा आप, दैट मैटर्स, बिकॉज ओके लिख दो, क्लियरली लिख दो। फ्री रिजर्व्स है बेसिकली, फर्स्ट है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। Why this is a free reserve? I'll explain in the buyback chapter, buyback and redemption of equity shares. We have separate chapter. I'll explain there clearly, because you just now note down CRR is created, okay, when redemption is done out of profits, okay? That part will explain, I'll explain later on clearly, but CRR is used mainly for bonus issue only. So basically first source of bonus issue should be from
सीआरआर। सीआरआर का मेजर पर्पस ही है बोनस इश्यू करने के लिए। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व जो क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, इसका मेन पर्पस है बोनस इश्यू करने के लिए। सो जब भी बोनस इश्यू कर रहे पहले ये रिजर्व को यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ब्रैकेट में कलेक्टेड और रियलाइज्ड इन कैश। Every securities premium cannot be used for bonus issue, only realized in cash। मतलब आपने कैश में रियलाइज होना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर कैसे है, एग्जाम्पल बता देता हूँ। शेयर्स इश्यू किया प्रीमियम में, पैसा आ गया, ठीक है, वो रियलाइज्ड इन कैश है। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, उसको मैंने पैसा नहीं दिया, शेयर्स दिया था, ठीक है, शेयर्स दिया है, वो शेयर्स भी प्रीमियम में दिया है, उस केस में नॉट रियलाइज्ड इन कैश। समझ गया डिफरेंस? हाँ। सर Next. एक बार फिर से एक बार बोल दीजिए तो। हाँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देख लीजिए। मैंने नॉर्मल इश्यू कर रहा हूँ शेयर्स एट प्रीमियम टू द पब्लिक। पब्लिक को मैंने इश्यू किया एट प्रीमियम, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 15 रुपीज में इश्यू कर रहा हूँ। इधर देखो, एग्जाम्पल अच्छे से देख लो। 10 रुपीज फेस वैल्यू है, मैं 15 रुपीज में इश्यू कर रहा हूँ। लमसम पेमेंट है, मुझे एप्लीकेशन के समय टोटल 15 रुपीज मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15 रुपीज मिल गया। दिस इज रियलाइज्ड इन कैश। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने 15,000 रुपीज का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, ठीक है, मैंने उसको शेयर्स इश्यू किया था, शेयर्स इश्यू किया था, शेयर्स इश्यू किया, 1000 शेयर्स इश्यू किया, 1000 शेयर्स इश्यू किया उसको। मैंने बोला हाँ ये शेयर्स मैंने दे दिया, बस का मैंने पैसा नहीं दूंगा 15,000 का। समझ गया? हाँ सर। हाँ, इसमें एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, 10,000 होगा, 1000 रुपीज इंटू 10 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5,000 जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 15,000 है। समझ गया? एग्जाम्पल समझ गया? शुभ कौन है? मनीष है? हाँ यस सर। हाँ मनीष, this 5,000 premium is not received in cash. Understood the difference? यस सर। हाँ, although benefit is received for 5,000 but cash में रिसीव नहीं हुआ ना, प्लांट एंड मशीनरी में रिसीव किया आपने, प्लांट एंड मशीनरी के रूप में आपने रिसीव किया है। शेयर्स हमेशा पब्लिक को इश्यू नहीं करता है, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है उसमें भी इश्यू कर सकता है। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिस्कस किया कि नहीं ये पॉइंट? हाँ सर सर। किया, हाँ हो गया सर। हाँ हो गया ना, उसका सम्स भी था, आप लोग किया भी है, ठीक है, समझ गया? इसका डिफरेंस है रियलाइज्ड इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश। समझ गया डिफरेंस? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट थर्ड वन है कैपिटल रिजर्व कलेक्टेड इन कैश। कैपिटल रिजर्व कलेक्टेड इन कैश, जो फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता है वो भी कलेक्टेड इन कैश ही है। कैसे? हमने फॉरफीट किया था, हमने पहले इशू किया है, एप्लीकेशन मनी में रिसीव हो गया, बाद में हमने फॉरफीट कर दिया, फॉरफीचर बैलेंस को टेल दिया कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट जो है वो भी रियलाइज्ड इन कैश ही है। समझ गया? यस सर। हाँ, रियलाइज्ड नॉट इन कैश कैपिटल रिजर्व, जब आप कोई भी एसेट सेल करते हैं, कोई भी एसेट सेल करते हैं, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट जब बन जाता है तब वो कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में भेज देगा, ठीक है।
दैट इज ऑल्सो रियलाइज्ड इन कैश. नॉट रियलाइज्ड इन कैश कुछ इंस्टेंसेस होगा, वो आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा. ठीक है. डिफरेंस आपको मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम में एग्जांपल बता दिया ना, सेम वैसा ही नेचर का कैपिटल रिजर्व भी पैसा में रियलाइज नहीं होता है, तब उस केस में हम यूज नहीं करना है. जब कैश में रिसीव होगा तभी फ्री रिजर्व बनेगा. ठीक है, उससे ही बोनस इश्यू कर पाएंगे. नेक्स्ट, जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व तो पता ही है, कंपनी हर साल कुछ परसेंटेज प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर कर लेता है, जनरल रिजर्व. नेक्स्ट, पी एंड एल सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस बैलेंस है. नेक्स्ट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब नोट कर लेना, बाद में कोई नहीं बोलेगा इसका क्या फ्री रिजर्व है क्या फ्री रिजर्व नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज नथिंग बट रिजर्व कंपनी बगल में रखते हैं. क्यों? एक साल में ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, एक साल में लॉसेस आ सकता है. यस और नो? एक साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स आया था, कंपनी शेयर होल्डर्स का अच्छा डिविडेंड दे दिया. डिविडेंड इज नथिंग बट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स. यस और नो? कुछ डिविडेंड दे देता है कंपनी प्रॉफिट्स आने से. नेक्स्ट साल में लॉस हो गया, शेयर होल्डर्स डिसअपॉइंट हो गया, उसको उन लोग को डिविडेंड नहीं मिला है, तो इसलिए क्या करते हैं कंपनीज, जब अच्छा प्रॉफिट्स मिल गया डिविडेंड्स के साथ डिविडेंड रिजर्व में थोड़ा अमाउंट बेच के सेव करते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर लॉस आएगा हम फिर भी डिविडेंड दे सकते हैं आउट ऑफ रिजर्व. समझ गया? टू बेसिकली टू मेंटेन द डिविडेंड कंसिस्टेंसी ईयर बाय ईयर, मतलब 10% इस साल दिया, नेक्स्ट साल भी अगर हम 10% देना है, थोड़ा रिजर्व रखते हैं, उस रिजर्व से हम डिविडेंड देते हैं. दिस इज कॉल्ड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ पी एंड एल अकाउंट बैलेंस अबव, सो दिस इज ऑल्सो ए फ्री रिजर्व. क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. Next, seventh, reserve fund. These are all free reserves. Reserve fund, जनरल रिजर्व फंड दोनों सेम मीनिंग है. थोड़ा अमाउंट बगल में रखेगा फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए. ठीक है. ये जनरल रिजर्व कैसे बनेगा? आउट ऑफ पी एंड एल बैलेंस ओनली. ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कैसे बनेगा? आउट ऑफ पी एंड एल सरप्लस ओनली. दिस रिजर्व फंड इज ऑल्सो आउट ऑफ पी एंड एल सरप्लस ओनली. नेम अलग है लेकिन सब नेचर एक ही है. नेक्स्ट, any free portion of specific reserve. Any free portion of specific reserve. सर ये स्पेसिफिक रिजर्व क्या है? ये स्पेसिफिक रिजर्व इज नथिंग बट नॉट फ्री रिजर्व. यू आर सेटिंग असाइड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. वो क्या था मैं बता देता हूँ, बट आप लोग लिख दीजिए. क्वेश्चन में अगर बोलेगा सर ये फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इसमें से थोड़ा पोर्शन फ्री है. एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं. इधर देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं बता देता हूं. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, दिस इज ए स्पेसिफिक रिजर्व. ये क्या था सर? इनकम टैक्स एक्ट में आप लोग कंपनी कुछ डिडक्शन पाने के लिए, कुछ एग्जेम्पशन पाने के लिए ये थोड़ा अमाउंट रिजर्व में भेजना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. दिस इज ए स्पेसिफिक रिजर्व विच इज नॉट ए फ्री रिजर्व. सो दिस बिकम्स ए नॉन फ्री रिजर्व. समझ गया? सो और यू कैन कॉल इट ए स्पेसिफिक रिजर्व. इसको बोनस में यूज नहीं कर सकते आइडियली. सर ये परमानेंटली बेचना है क्या? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में पैसा बेच के छोड़ देना है क्या कंपनी? नहीं,
इनकम टैक्स एक्ट बोला था 5 साल रखना पड़ेगा, 10 साल रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल होने के बाद ये फिर फ्री रिजर्व बन जाएगा, समझ गया। सर आप लोग को कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में वो लोग बोलेगा इसमें थोड़ा सा इतना पोर्शन फ्री रिजर्व है, वो पार्ट है ये, एनी फ्री पोर्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर? नाउ अभी फर्स्ट में क्या आएगा? एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व, दिस इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व, दिस इज नॉट ए फ्री रिजर्व, यू शुड नॉट यूज दिस फॉर बोनस। एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट को रिवैल्यू करते हैं एस 10 के हिसाब से पीपीई, तो उस समय एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, तो वो फ्री रिजर्व नहीं है, तुम यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं अनरियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड गेन, सर कुछ गेन है लेकिन आपने रियलाइज नहीं किया, ठीक है, ये नहीं अनरियलाइज्ड। अगर रियलाइज किया वो फ्री हो जाएगा, अनरियलाइज है। एग्जाम्पल फॉरेक्स गेन, समझ गया। आपने डॉलर्स होल्ड किया था, ठीक है, आपने डॉलर्स खरीदा है, जिस दिन खरीदा है उस दिन 100 रुपीज है डॉलर, आपने वो डॉलर होल्ड किया। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च में देखा डॉलर वैल्यू हो गया 110 रुपीज, ठीक है, 110 रुपीज। वो 10 रुपीज जो है वो अनरियलाइज्ड गेन है। कैसे? आपने डॉलर्स बेच देगा तब वो 10 रुपीज आपके पॉकेट में आ जाएगा एडिशनली, तब रियलाइज्ड गेन है। आपने बेचा नहीं, होल्ड कर रहा है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस देखने से 110 रुपीज है, दिस इज नोशनल गेन नॉट रियलाइज्ड गेन, ठीक है। एग्जाम्पल में बता दिया। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका ऑपोजिट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, क्लियर। 5 वाला है वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड, अच्छे से लिख देना ये सब, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये क्या फंड होता है? अगर कोई वर्कमैन का कुछ फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो गया है, उन लोग को कुछ वो बंदा काम करने वाला बंदा है, उसके ऊपर बहुत फैमिली डिपेंडेंट होता है, ये बंदा कमाने से ही वो लोग को ब्रेड एंड बटर मिलेगा। इस बंदा का अगर हाथ कुछ टूट गया, एग्जाम्पल फैक्ट्री में कुछ हो गया एक्सीडेंट, उन लोग को कॉम्पनसेशन देने के लिए, मतलब जैसा केसेस में कॉम्पनसेशन देने के लिए थोड़ा कुछ फंड रखते हैं नॉर्मली कंपनीज। अगर फैक्ट्रीज है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर है, वो लोग को कभी भी मेंटेन करते हैं। दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक रिजर्व, सो यू शुड नॉट इश्यू बोनस आउट ऑफ दिस फंड। समझ गए? एनी डाउट्स हियर? नो सर। Basically free reserves, or indirectly you can say sources for bonus issue. These are not the sources for bonus issue. Clear? आप लोग क्या करोगी, इसका मैंने सम एक बोल दूंगा, बाद में होमवर्क दूंगा, ठीक है। आप लोग आज तक जो भी क्लासेस हुआ सब एक बार रिवाइज करके आना कल, ठीक है, ठीक है। एनी डाउट्स इन द टुडेज क्लास? No, sir. If you have any doubts, you can ask. No? Okay, then thank you. Everyone drop off. Shubha, you stay in the line. Okay, sir.